Last time I had done question number 70, if you'll remember. Today I'll be starting from 71, okay, to the end. There are some important questions and some questions that are of JEE Advanced, so we'll cancel that questions that is not used. Some questions which are very important and they are level 2, I'll be doing that in today's lecture, okay? So tomorrow's paper will be based only on basic questions only. Tomorrow nahi, Sunday. And then level 2 will be based on little higher questions. Question number 71, I don't want to waste time. I'm starting with question number 71. They are telling you a horizontal platform with an object placed on it executing vertical SHM. So there is a horizontal platform and a person is placed on it, an object is placed on it, mass M. And this guy is performing simple harmonic motion with an amplitude of this much. So can I say this is the mean position? This will be the upper extreme. And this will be the lower extreme. And this is the amplitude. Na? What must be the least time period so that the object is not detached? Whenever they tell you object detached means normal reaction is becoming zero. Are you understanding? Hello? Hello, Hana, bolo, yes or no? Yes, sir. Please be with me. ये सब hard वाले sums हैं. Please. And please keep on replying so that I will also understand what is happening. Always remember in vertical SHM, this is vertical SHM, the object can lose contact at upper extreme. It's important here. In vertical SHM, where is the object losing contact at? Upper extreme. तो upper extreme पे क्या होता है? तो ये mass है. Where is the weight acting? Downwards. ये platform है ना? Can I say this will be the normal reaction? And we know the net acceleration of SHM is this way. And the acceleration is omega square A. Are you understanding? Hello? Yes. Acceleration at the extreme position is omega square A. यार इतना तो पढ़ाई किया रहेगा ना? Now can I say at upper extreme, apply F net is MA. F net क्या रहेगा? mg minus n is m into A. But what is A equal to? Omega square A. Hello, Hana, bolo. Yes or no? Yes. So what will be n equal to? n क्या हो जाएगा? Yes or no? They want that the object should not be detached. Not be detached मतलब limiting condition. Limiting condition मतलब n का value कितना put करना है? Hello? 0. If I put n is equal to 0, can I say mg will become equal to m omega square A? Yes or no? So omega will become root of g by A. Hello, 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 hello. Yes. Yes, ये sir. standard result है. ये standard result है. For not losing contact in vertical SHM. ओमेगा कितना होना मांगता है? हेलो, लर्न बाय हार्ट. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है जो मैंने किया. फॉर नॉट लूजिंग कॉन्टैक्ट ओमेगा शुड बिकम रूट ऑफ जी बाई ए. खत्म. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड? 2 pi under root A by G. Perfect, done. So 2 pi root of A by G. A is given as 4 into 10 raised to minus 3
एंड g इज ऑलवेज रिमेंबर इज पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो पाई बन गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखो, ये हो जाएगा 4 बाहर निकला तो ये 4 हो गया ना बाहर, 4 इंटू रूट ऑफ 10 रेज टू -3, 10 रेज टू -3 का मतलब होता है 1/1000। आर यू गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. तो 4/1/1000, 1000 मतलब 100 का हो गया 10 और 1000 का हो जाएगा 3.3, 3.2 लेते हैं, तो बी 4/32 अप्रोक्सीमेटली, या पाई के टर्म्स में आंसर है क्या? 4/32 will be approximately 71 if I take, it will be pi by 100 हो जाएगा, 4 pi by 32, pi by 25, this will be the answer. You calculate the value, वरना इसको पाई के टर्म्स में रखना है तो हम लोग जी का वैल्यू कितना पकड़ लेंगे? हेलो बेटा फटाफट टेल मी मैन, पाई का वैल्यू 10 ले लेंगे ना? हेलो? Yes, sir. ये इसको पाई का वैल्यू, इफ यू टेक 10 and if you calculate now this will come pi by 25, no big deal about that thing. Okay, getting enough? Bye bye, say yes or no please, come on. So this is important है ना? कौन सा समय ये, किसका समय बेटा, कौन सा? वर्टिकल एसएचएम, और ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये ओमेगा रूट जी बाय फॉर नॉट लूजिंग कॉन्टैक्ट, एंड वेयर इज इट अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट? बाबा टेल मी, वेयर इज इट अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट, एट विच एक्सट्रीम? हेलो? अपर एक्सट्रीम, ऑलवेज अपर एक्सट्रीम पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर है। इधर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और लोअर एक्सट्रीम पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, इट इज mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर है। तो कैन यू टेल मी आउट ऑफ द थ्री वेयर इज नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम? अरे भाई बोलो 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 बोलो, वेयर इज नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम? मिनिमम upper, अपर एक्सट्रीम, एंड मिनिमम मतलब जीरो भी बन सकता है ना ये, यस और नो? थोड़ा सी ध्यान रखना बेटा, ये थोड़े डिफिकल्ट वाले सम्स है, बट ओके, आउट ऑफ दैट लाइक आउट ऑफ दैट 5 व्हिच विल डिसाइड द ऑल इंडिया रैंक, वो ये सब टाइप के सम्स होते हैं। गेटिंग इट नाउ? स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन सेम ही लेवल के रहेंगे जो बेसिक लेवल वाले हैं, जो 5 क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करते हैं वो इस लेवल से होते हैं। ओके, तो आपको क्लिक होना चाहिए वो टाइम पर। आर यू देयर विद मी? यस और नो? Yes, sir. प्रैक्टिस करना बेटा प्लीज को, प्लीज। आई एम गोइंग टू गो टू 74। Look over here. Now remember I had given you one standard result. ये x0 है, ये x प्लस a है, और ये x माइनस a है, माइनस a, और ये x है a/2। कोई बता सकता है कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक? Come on, please tell me. We know it, huh? We know it. Please tell me. t/12, and ये टाइम कितना रहेगा? t/6, और ये टाइम कितना रहेगा? t/4। हेलो, ये आ गया? दिस वी आर डन ना बिफोर? हेलो, से यस और नो मैन, से यस और नो। ये किया है हम लोगों ने, yes, ये वी हैव डन। और आपको याद रखना है कि 0 से लेके हाफ तक t/12, हाफ से लेके पूरा 1 तक a तक t/6, एंड पूरा 0 से लेके a तक t/4। दिस यू शुड नो बाय हार्ट। Now they are telling you particle executes SHM with an amplitude of 20 cm. So can I say amplitude is 20 cm? मतलब ये x0 है, ये x 20 cm है। Are you getting it? Hello? yes, sir. And the time period is given from year to year as, एक काम करता हूँ मैं, बेटर है कि amplitude is given as 20 cm, तो ये पूरा 20 कर लेता है उसको हम। Can I say this is 20 cm? And time period is given as how much? कितना दिया है? 12 seconds. What is the minimum time required to move from 10 centimeter on one side to 10 centimeter on the other side? क्या करना है? कहां से कहां तक जाना है? Come on. कहां से कहां तक जाना है? Come on, use your rationality, man, please. कहां से कहां तक जाना है? What is the minimum time required to move from? 0 to a. No. Listen. ये पढ़ो. What is the minimum time required to move from between 2 points 10 centimeter on either side? मतलब कहां से कहां तक जाना है हमको? 10 centimeter. Minus a/2 to
हाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। आर यू गेटिंग इट? हेलो Yes, Yes. sir. यार बोलो। अच्छा कितना टाइम रहेगा? किसको मालूम है ये टाइम कितना लगता है 0 से लेके a/2 तक? t/12। और ये भी रेप्लिका है ना ये साइड पे, ये भी कितना रहेगा बेटा? t/12। सो व्हाट विल बी द टोटल टाइम? T by 6. Done. This is the answer. So time is equal to t/6. That will become 12/6. It will become how many seconds, bacha? Hello? Hello? Yes or no? Yes. प्लीज बी विथ मी। हाँ प्लीज बी विथ मी। सबको समझा? फिर से मैं आपको एक चीज लर्न बाय हार्ट करने को दूंगा, याद रखो बेटा प्लीज। 0 a कितना टाइम लगता है 0 से a तक जाने के लिए? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, T by कमान। t/4। 0 से लेके a/2 तक T/12. T by 12. t/12। रट्टा मारो इसको। एंड a/2 से लेके a तक कितना? T by 6. दिस हैज टू बी नोन ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें कोई दूसरा राय नहीं है, वरना आप लॉन्ग लॉन्ग मेथड से कितना करने जाएंगे। दिस हैज टू बी डन प्रॉपरली। और दूसरी साइड पर रेप्लिका सेम है। अब आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, इसी के अराउंड आप रिवॉल्व करेंगे। यस और नो? हेलो हेलो, Yes. गेटिंग इट? हाँ ठीक है। आई एम गोना गो टू 76। पे अटेंशन टू मी। 76 क्वेश्चन। ओके लुक ओवर हियर। A mass m is attached to the spring is held in position so that the spring remains unstretched. तो यहाँ पर spring is unstretched, इस position पे spring is क्या भाई? Which condition? हेलो? Unstretched condition। अब इसको जैसे मैं छोड़ दूंगा ये नीचे आएगा। हेलो बोलो, यस और नो? नीचे आएगा और मीन पोजीशन हो जाएगा। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स कितना होता है? हेलो अरे बोलो मैन। 0. 0। दैट मींस mg will become equal to upper force, and upper force कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। and that force is what? kx ना। hello, this force is kx, where this will be the x। yes or no? hello अरे भैया टेल मी प्लीज, टेल मी Yes, sir. फास्ट। Yes, sir. भाई नीचे जाएगा x तो वो ऊपर खींचे जाएगा ना, वो स्ट्रिंग खींचे जाएगा ना स्प्रिंग, तो उसमें भी फोर्स आएगा kx। तो कहना से यहाँ से kx आ रहा है। और नेट फोर्स जैसे आपने कहा 0 है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? Mg is कम ऑन। equal to K. mg is equal to kx। so what will be x equal to? mg by k। you know what is x equal to? you know what is x equal to? मीन पोजीशन से लेके अनस्ट्रेच पोजीशन तक उस x को क्या बोलते हैं? दिस x इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा? Amplitude. बराबर है? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes. आर यू ऑल गेटिंग इट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes. यस और नो? तो ये है अनस्ट्रेच पोजीशन से मीन पोजीशन तक। यू नो इट राइट? दिस वाज द अपर एक्सट्रीम ना। अगर इनडायरेक्टली देखने जाएंगे तो ये कौन सा पोजीशन है? ये अपर एक्सट्रीम है, ये हमारा मीन पोजीशन है। अच्छा नीचे भी कितना जाएगा? लोअर एक्सट्रीम भी कितना जाएगा नीचे? X. तो एक्स ही जाएगा ना भाई, ये भी तो एक्स ही रहेगा। यस और नो? हेलो? तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? दिस एक्स इज नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज mg by k। m कितना है क्वेश्चन में? 5 है, g 10 है, और k का वैल्यू 200 है, तो 54 is 1/4, दैट इज 0.25 मीटर। आर यू गेटिंग इट? हेलो 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 Yes. बोलो। ओके ओके सर, यस और नो? क्लियर है? पीपल आर देयर और नॉट? यस। Yes. ओके फाइन। One second, I'll just come.
Yeah, are you all there? Hello. Yes, sir. 77. A rectangular block of mass m and area cross section A floats in a liquid of density rho. If it is given a small vertical displacement and undergoes oscillations with time period t. ये हम कर चुके हैं ना? Synopsis में किया है कि नहीं? Hello. If you remember, man, if you remember, tell me. ये ब्लॉक था, remember this was, पढ़ाई की नहीं है आप लोगों ने, नहीं? ये ऐसे है, अब ये इतना है, बराबर है, और ये इनिशियली फ्लोट कर रहा है. अब कह रहे हैं इसको थोड़ा अंदर धक्का मार दिया, तो इसको अंदर अगर हम धक्का मारेंगे, अभी तो क्या हो रहा है, वेट एंड अपथ्रस्ट बैलेंस्ड है ना. हेलो, आर यू गेटिंग इट? अरे फ्लोट कर रहा है ना भाई, ये फ्लोट मतलब क्या, डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स आर द सेम, बराबर. अब इसको अंदर थोड़ा धक्का मारते हैं हम लोग. ए भाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? यस और नो? तो इसको इस पोजीशन से अंदर और धक्का मारते हैं हम लोग, मतलब इस पोजीशन पर था ना ये फ्लोट कर रहा था, इसको और थोड़ा धक्का मारता हूं मैं अंदर, तो कहना इसे इसका अपथ्रस्ट जो है बढ़ जाएगा, वेट तो उतना ही रहेगा, तो इसको एक्स में और धक्का मारूंगा अंदर, तो कहना इसे एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जो आएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट? V immersed rho liquid into G. Are you getting Yes, it? sir. Yes. Hello. How much is the extra weight which is immersed? ये ना. What is volume? Can I write this as area of the base into height? Immersed. Yes, sir. Hello. And can I compare this with Kx? Because the extra force is your restoring force. ना बाबा, hello, 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 hello. Yes. बोलो. तो भी K equal to XX उड़ा दो. भी K equal to. सही है? सही है क्या? And what is time period? 2 pi root of m by k. But k की जगह क्या लिखना है? A rho liquid into G. What is the relation of time period and rho liquid? बोलो 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 बोलो. Fast fast fast. Yes or no? A B C D. Come on man. D हो गया ना? D हो गया, सही है? हेलो. Yes. अच्छा, इसमें ना एक मॉडिफिकेशन करता हूँ जो नेक्स्ट सम में काम आएगा. मेरी बात सुनना सब लोग, अभी मेरी बात सुनना प्लीज, मेरी बात सुनो. सपोज इधर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया, बराबर है क्या? हेलो. Yes. अब क्या ना, इसे इसको अगर नीचे धकेलेंगे एक्स तक, तो स्प्रिंग, ये तो एक्स्ट्रा आ ही रहा था नीचे से, ये वाला एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट. क्या ना, इसे इसको नीचे अगर हमने धकेला ऐसे नीचे, तो क्या ना, इसे यहां पर और एक फोर्स आएगा विच विल बी के एक्स ओनली. हेलो 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 हेलो. यस और नो? भाई अपथ्रस्ट तो आ ही रहा है, अपथ्रस्ट के साथ में और एक स्प्रिंग फोर्स आ रहा है. आर यू गेटिंग इट? हेलो. Yes. तो व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा फोर्स? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये रहने दो, ये चीज समझ गया. हम लोग एक काम करते हैं, वी विल गो टू द नेक्स्ट सम ओनली एंड डू इट. ओके, वी विल गो, फॉरगेट अबाउट दैट सम, दैट इज डन. नाउ वी विल बी डूइंग दिस सम, क्वेश्चन नंबर 78. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे अटेंशन. देखो, पानी में पूरा डूबा हुआ है ना, ये पूरा डूबा हुआ है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट नहीं आएगा. ओवर हियर देयर इज नो एक्स्ट्रा upthrust because already it is what, sir? Fully immersed in water. Yes or no? तो इसका टाइम पीरियड, इस फॉर्मूले का टाइम पीरियड तो रहेगा 2 पाई रूट ऑफ m by k ही रहेगा. मतलब इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ स्प्रिंग इन एयर. इन एयर. यस और नो? सेम. अरे भाई, टेल मी. Because rather than the medium being air, the medium over here is water, which is fully immersed. Are you catching my words? Yes, sir. एयर है ना, यहाँ पर एयर है ना भाई पूरा, उसकी जगह यहाँ पर वाटर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मीडियम से क्या फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, फर्स्ट में प्रॉब्लम है। फर्स्ट में देखो थोड़ा इमर्स्ड है, थोड़ा इमर्स्ड नहीं है, तो अगर हम इसको थोड़ा डुबा देंगे एक्स तक, कैन आई सी एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट तो आएगा, हेलो, और यहां से भी एक फोर्स आएगा ना के एक्स, तो कैन आई से द एक्स्ट्रा फोर्स इन द फर्स्ट केस will be extra upthrust plus extra spring force. Hello, are you getting it? Are you getting my point? अरे भाई टेल मी यस और नो। तो एक्स्ट्रा फोर्स को एफ एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग के नाम से लिखते हैं। एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट कितना आया था? वी इमर्स रो लिक्विड जी ना, दैट इज ए इनटू एक्स रो लिक्विड जी। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस थिंग? एंड एक्स्ट्रा फोर्स कितना, एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स कितना आया? के एक्स आया। कैन आई से तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ए रो लिक्विड जी प्लस के इंटू एक्स। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस और नो? कैन आई से दिस इज योर रिजल्टेंट के? एफ इज के एक्स ना, 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 तो ये के बन गया ना। सो टाइम पीरियड क्या बना? 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के, बट के की जगह क्या लिखना है? पूरा लिखना है। दैट विल बी के प्लस ए रो लिक्विड इनटू जी। बोलो, दिस इज टाइम इन द फर्स्ट पैटर्न एंड दिस इज द टाइम इन द सेकंड पैटर्न। कोई बता सकता है कौन सा टाइम बड़ा है? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? हेलो मैन, टेल मी नाउ, दिस मच तो you all can tell me. T2. T2 is bigger because the denominator is smaller. Yes or no? Hello? Yes. You getting it? You getting it? You getting it? Hello? Are you all understanding or should I leave all the sums? कि भाई नहीं हो रहा है, हार्ड वाली क्वेश्चन है, leave it. Are you understanding? Yes, Yes, sir. sir. हाँ भाई, okay. These are all your last all India ranking questions which are there. चलो आगे 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 आगे। यस, 81 पर आते हैं, सेम टाइप का 81 सेम टाइप। ये सब इजी है, ये सब पीछे सॉल्यूशन में भी देखेंगे तो आ जाएगा। अ सॉलिड क्यूब फ्लोट्स इन वाटर हाफ इमर्स्ड। कौन सा फॉर्मूला हमने निकाला था अभी जब फ्लोट करता है वो? अरे भाई बोलो, फ्लोट करता है तो कौन सा फॉर्मूला हमने निकाला था? अभी हमने निकाला था, याद है? टाइम पीरियड कितना था? समबडी रिप्लाई मैन। 2 pi under root And अंडर रूट एम बाय K ए रो plus लिक्विड इंटू, केस नहीं है भाई, के इधर स्प्रिंग ही किधर है? के कैसे लिख सकते हो आप लोग? हेलो, खाली ब्लॉक है ना? yes, sir. अरे यार टेल मी मैन, अगर स्प्रिंग होता ऊपर तो के आता ना। हेलो, आर यू देयर विथ मी? yes. यस सर। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ये फॉर्मूला इसका बनेगा, बट यहाँ पर गड़बड़ दिया है, यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ा। अ क्यूब इन वाटर इज हाफ इमर्स्ड, हाफ इमर्स्ड। ओके, इट इज हाउ मच इमर्स्ड? हाउ मच इमर्स्ड? Half. Half immersed, half immersed, half immersed. What is happening? Oh my god, it's gone. One second, just wait. स्क्रीन उड़ गया है, ठीक है? Just 2 minutes, just wait please. Are you all understanding ना the processes? हेलो Yes, sir. यार, इसके पहले के सम्स एकदम इजी थे, इसके पहले 70 के पहले तो सब इजी था। थोड़ा सी यार 10-20 सम तो हार्ड वाले करना चाहिए ना आप लोग को।
Okay, which question we were doing? Yes. Okay. Yeah, ठीक है. क्या फॉर्मूला आया था? हेलो. So we can't see the हाँ, screen. एक मिनट. Can you see now? एक मिनट. न्यू स्क्रीन, न्यू शेयर. यस. अब दिख रहा है? अब दिख रहा है भाई? हेलो. Yes. Yes. अब मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अभी क्या बोल रहा है कि ये ऐसे है और ये ऐसे है. कितना फ्लोट हो रहा है? हाउ मच इट इज फ्लोटिंग? कम ऑन टेल मी. अरे रीड मैन, रीड. कितना Half फ्लोट हो it. रहा है? हाफ इट इज फ्लोटिंग एंड हाफ इट इज आउटसाइड. बराबर क्या? और हमको मालूम है नीचे डुबाकर अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कम ऑन यू ऑल रिपीट, कितना होता है? 2 पाई रूट ऑफ m बाय a रो लिक्विड g. दिस इज स्टैंडर्ड. हाँ, बराबर. हेलो बेटा, Yes. k कब आएगा इसमें? k कब आएगा? व्हेन विल k कम? When there's spring. स्प्रिंग इज देयर. ठीक है, ये तो याद हो गया अभी. अच्छा, बराबर है ना? अच्छा, ये पूरा डूबा हुआ रहेगा पानी में तो क्या होगा? व्हाट विल कम देन? कम ऑन, व्हेन इट इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर देन व्हाट विल हैपन? तो ये सब नहीं आएगा बिकॉज अपथ्रस्ट कोई क्वांटिटी प्ले नहीं कर रहा है ना रोल. भाई यस और नो? तो 2 बाय रूट ऑफ m बाय k ही आएगा. यस और नो? यू हैव डन दैट थिंग ना? यस और नो? क्लियर है? Yes. नाउ वी आर टेलिंग यू इट इज हाफ इमर्स्ड. Okay. Always remember it will come in fluids. That fraction immersed is rho solid upon rho liquid. Fraction immersed क्या है? Rho solid upon rho liquid. Density of solid upon density of liquid. Hello? Hello? Yes. What is the fraction immersed over here? Read the question. How much fraction is immersed? अरे भाई बोलो. Half. So can I write this is half? But which is the liquid over here? Read the question. Which is the liquid over here? अरे भाई tell me how can I do? Water का density कितना होता है? 1000 होता है ना? ऐसा है? Yes or no? Yes. तो रो सॉलिड कितना रहेगा? 500. ऐसा है? Yes or no? Are you there with me? Yes. Are you there with me? Yes or no? Yes, sir. Yes. ओके, ये चीज है. तो ये फॉर्मूला याद रखना. फ्रैक्शन इमर्स्ड विल ऑलवेज बी रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड. ये फ्लूइड्स में सिखाया जाएगा. रो सॉलिड तो मिल गया और रो लिक्विड तो हमको मालूम है. रो लिक्विड तो 1000 है ना? हेलो. Yes. अब शुरू करते हैं हम लोग. क्या पूछा है आपको? टाइम पीरियड दिया था. मास पूछा है आपको मास मांगता है. ओके, now look carefully how to deal with this. ये अच्छा वाला खतरनाक क्वेश्चन है. कैन आई राइट दिस एज t विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ, ये मास ऊपर वाला जो मास है इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब. हेलो, लेंथ क्यूब. लेट द लेंथ बी l. चलेगा क्या? l क्यूब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर. हेलो 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 हेलो. यस और नो? Yes. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज l क्यूब. अच्छा, एरिया ऑफ द बेस क्या रहेगा? l स्क्वायर. आर यू देयर? आर यू ऑल देयर विद मी? Yes. तो टाइम पीरियड कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है? पाई बाय 5 इज 2 पाई. रो सॉलिड इज गिवन एज 500. l क्यूब नीचे थे, l स्क्वायर, l बच गया, ये बन जा. रो लिक्विड कितना बना? 1000 इंटू जी इज 10. यस और नो? ये 2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर l अपॉन 20. सो विल बी 1/100 इज l/20. सो l का वैल्यू कितना आया? 1/5. यस और नो? यस और नो? Yes. अच्छा, मास पूछा है. मास विल बिकम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं l क्यूब.
Density of solid we found out 500 into L cube is 1 by 5 का cube. Yes or no? Yes or no? Yes. बोलो. क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा रिवाइज करना. ये फॉर्मूला मेन है. we came with concept number 1, then we came with concept number 2, then we did calculation over here. This was mathematical calculation. I'll put this in concept number 3. आपको समझ रहा है क्या हो रहा है? हेलो 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 बोलो. Yes, sir. So these all sums are all India level questions which will involve more than one concept. एक या दो क्वेश्चंस रह गए ऐसे. पूरा पेपर ऐसे भरा हुआ नहीं रहेगा. दैट इज अनरियलिस्टिक पेपर. एक दो चार क्वेश्चन ऐसे टाइप के होंगे. ऑब्वियसली पेपर टफ आएगा तो होंगे. ओके, दैट विल टेस्ट योर ऑल इंडिया रैंकिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 82 पर आता है. तो इसको है ना 2-2 3-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करो. ओके, 2-2 3-3 बार ये सब सम्स को लिखकर प्रैक्टिस करो बेटा, तो समझ में आएगा आपको. वेरी गुड क्वेश्चन 82. In a figure, the block of mass m is attached to a spring of spring constant k. Spring constant is k. Is it contact with a complete elastic wall and compression is E? मतलब कितना इनिशियली प्रेस किया गया है भाई? रीड द क्वेश्चन. कितना इनिशियली प्रेस किया गया है बेटा? E. मतलब एक्चुअली क्या था? देखो इधर मेरी बात सुनो. ये ऐसे है, ये होना चाहिए था. ये वॉल लगा दिया हमने. ये वॉल है. ये एक्चुअली इधर होना मांगता था. अगर वॉल नहीं होता तो ये होता इतना. हेलो, कैन आई से दिस विल बी द पोजीशन ऑफ विच लेंथ? विच लेंथ? Natural. और मीन पोजीशन. सही है ना? बट कैन आई से कितना दबाया वॉल ने इसको? हेलो, ई. मतलब एक्चुअली ये इधर किधर होना मांगता था. ये जो एम है ये इधर होना मांगता था. ऑलरेडी इतना प्रेस किया गया है ये. आर यू गेटिंग इट? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड फर्दर बाई ई. मतलब और मैंने स्प्रिंग को, ये मास को उठा के इधर से दीवार से उठा के इधर और कंप्रेस कर दिया ई तक. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हेलो, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये पोजीशन पर मैंने उसको रखा है अभी और मैंने उसको छोड़ दिया. फिर मतलब वॉल ने उसको ऑलरेडी दबा कर रखा है ई तक. वॉल ने उसको ऑलरेडी दबा कर रखा है ई तक. मैंने और उसको प्रेस कर दिया ई तक. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. हेलो. अच्छा, अगर वॉल नहीं होता, अगर वॉल नहीं होता तो उसका मीन पोजीशन कहाँ होता? इधर होता. हेलो, होता कि नहीं? अरे Yes. इधर होता कि नहीं? अरे भाई, अगर वॉल नहीं होता तो ये उसका मीन पोजीशन होता. यस और नो? कैन आई से अगर वॉल नहीं Yes. होता तो ये पूरा एम्पलीट्यूड होता. यस और नो? Yes, sir. मीन से रहिए. राइट एक्सट्रीम है ना मेरा बच्चा, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है ना उसका. यस और नो? अगर वॉल नहीं है, इमेजिन देयर इज नो वॉल. अगर दीवार नहीं होता तो नेचुरल लेंथ इधर होता. नेचुरल लेंथ से जितना दबाएंगे तो हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड इन दिस केस इन टर्म्स ऑफ ई ई ई ई ई? कम ऑन, 2e 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 2e. एंड वेयर इज द वॉल प्लेस्ड एट? भाई वेयर इज द वॉल E. प्लेस्ड? A by 2. a/2. वेरी गुड, आई वांटेड दैट ओनली. बेटा बहुत अच्छे. कैन आई से द वॉल इज प्लेस्ड एट a/2? अरे मेरा बच्चा, दिस इज x0, दिस इज x a/2. कैन आई से कितना दबाकर रखा है मैंने लेफ्ट एक्सट्रीम पर? x इज a तक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो Yes. हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. ओके. अब ये क्या बोल रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी. ओके, नाउ लिसन टू मी. देखो वॉल है, वॉल तो हटने वाला नहीं है. वॉल तो हटने वाला नहीं है. अब आपने क्या कर दिया? अब आपने इधर से इस पोजीशन से इसको छोड़ दिया. टाइम पीरियड का मतलब 1 to n फ्रो मोशन.
हेलो, यस और नो? अरे भैया बोलो। Yes. Yes, sir. टाइम पीरियड का मतलब होगा 1 टू एंड फ्रो मोशन, यस और नो, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, वेयर in terms of A, where is the particle going from where to where? In terms of A, where is the particle going from? X is A to A by 2 and then A by 2 to A, yes or no? Yes. Yes, अरे sir. भाई, he is there at A. He'll go to A by 2, then he'll return back to A. तो कोई बता सकता है A से लेके A by 2 तक कितना टाइम पीरियड था? मैंने आपको रट्टा माराया था अभी थोड़ी देर पहले. Come on man, tell me fast. A to A by 2, how much is the time? T by बोलो बोलो, सही है, इतना डरो मत बेटा. T Tell by me. 6. T by 6 जाने का और T by 6 आने का, yes or no? T by 6 Yes. जाने का and T by 6 आने का. So can I say the total time will become T by 6 to go and T by 6 to come? What will be the answer बेटा? T by T by 3. But T का फॉर्मूला हमको मालूम है 2 pi root of m by k. हेलो, by 3. Are you getting it? अरे भाई, ये 3 तो आएगा ना यहाँ पर, yes or no? yes. This T is 2 pi root of m by k. अगर ये ना होता तो T by 3 है यहाँ पर, तो this will be the answer. बोलो. हेलो. Yes, sir. ओके ओके. पूरा चैप्टर टफ नहीं है यार, कुछ 10-12 क्वेश्चन तो हार्ड रह गए ना, वो भी नीट वालों ने आपसे पूछना बंद कर दिया है. ओके, फिजिक्स इस क्वेश्चंस के वजह से, इन क्वेश्चंस के वजह से टफ माना जाता है, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की वजह से टफ नहीं है फिजिक्स. इसका ट्रिक यही है, इसको 2-3 बार सीधा याद कर लो, इसको सॉल्व करो और याद कर लो. व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ सम कम्स, यू नो हाउ टू डू इट. हेलो. Yes, sir. I'll come to 83. I'll come to 83rd question. Pay attention to me. Huh? Okay, listen to me now. A cubical block of mass m vibrates horizontally with an amplitude of 4 and frequency of 2. A small block of mass m is placed on a bigger block in order that the smaller block doesn't lose contact. कुछ दम नहीं है, ये किया हुआ सम है. वो क्या बोल रहा है कि ये एक स्प्रिंग है और ये मास ऑसिलेट कर रहा है, और इसके ऊपर हमने एक छोटा ब्लॉक रख दिया, छोटो एम. ओके, अभी आपने अगर मेरे इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज वीडियोस देखे तो आपको पता लगना चाहिए, वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट? डू यू नो द सम? वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट? हेलो, अरे भाई, टेल मी, ये इंट्रोडक्टरी में किया था. कैन आई से इट विल लूज कॉन्टैक्ट एट द राइट एक्सट्रीम? क्यों? मैं बताता हूं आपको. कैन यू टेल मी? ये मीन है, राइट एक्सट्रीम है. वर्टिकल एसएचएम है, वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट एट द अपर एक्सट्रीम? याद है ना? हेलो हेलो हेलो, याद है? Yes, sir. अच्छा, राइट एक्सट्रीम पे कैन आई से द एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड दिस वे, ए मैक्सिमम. याद आ रहा है किसी को? हेलो. Yes, sir. अच्छा, ये बॉडी कौन से फ्रेम में है? इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? ये ऊपर वाला छोटा वाला. Inertial. अरे कैसे बात कर रहे हो बेटा, नॉन इनर्शियल में बैठा. Non-inertial. नॉन इनर्शियल, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा, यस और नो? Yes, sir. सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. कैन आई से दिस विल बी द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन हिम? आर यू गेटिंग इट? सूडो फोर्स का फॉर्मूला इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज ओमेगा स्क्वायर ए. बोलो भाई, बोलो. हेलो. Yes. अब ये सूडो फोर्स इसको धक्का मारेगा और उसको बोलेगा जाओ उधर. मगर कैन आई से फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर, एंड फ्रिक्शन विल से, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, जमीन रफ है, तो फ्रिक्शन विल से आई विल नॉट लेट यू गो, एंड द फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू एस एन जी. आर यू गेटिंग इट? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? तो फ्रिक्शन उसको दूर लेकर जा रहा है. अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो उड़ जाता पीछे, मगर सिंस इट इज अ रफ सरफेस, म्यू एस एम जी इज सेविंग हिम. कैन आई से व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट? हेलो, when it is on the verge of losing contact, m omega square a should be equal to mu s mg. ये कैंसिल. हेलो, तो आपको पूछा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, मतलब म्यू एस कितना होना चाहिए? म्यू एस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a बाई जी. हेलो हेलो हेलो, अभी वैल्यू डालते हैं ना.
बेटा फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है, तो ओमेगा कितना रहेगा 2 पाई एफ रहेगा ना, दैट इज 4 पाई, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर. एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर बाय जी का वैल्यू इज 10, तो 10 और पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर 16, 16 4 जा 64, 64 into 10 raised to minus 2. What is the answer, man? 0.64. बोलो. Hello. Hello. Yes. I have done this in the introductory exercise also, sir. Yes or no? Clear है? यार, if no response is there, मैं ये सिखाना बंद कर देता हूँ मैं. Hello. Are you all understanding? Yes. Tell me. हाँ भाई. Okay. I don't want to spoil the whole show because of these things. अगर आपको, you have to learn this thing if you want a good rank. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग सॉल्व करना. 85 इज नॉट देयर, विल कैंसिल द 80. 85 इजी. 86 इज नॉट देयर, 86 को कैंसिल करना. 86 इज कैंसिल्ड. प्लीज कैंसिल 86. प्लीज कैंसिल 86. विल कम टू 87. नाउ पे अटेंशन टू मी. 87 पर आते हैं, 87 पर आता है, 87 पर आता है. लिसन टू मी, गुड क्वेश्चन, अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. Okay. A mass, a particle is in linear simple harmonic motion and v refers to the average speed during the interval of t by 3. t by 3. t by 3 मतलब कितना डिग्री होता है? t को कितना डिग्री लगता है? t को कितना डिग्री लगता है? t by 3 को कितना डिग्री लगेगा? Come on man, help me out. Hello. Are you there? Yes, sir. Then the maximum possible value of v. अच्छा, when is v maximum? When is v maximum? When is v maximum? Position. मीन पोजीशन. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v तभी रहेगा जब वो मीन पोजीशन से नजदीक रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर इट इज नियर टू विच पोजीशन बेटा, विच पोजीशन. ये सब ट्रिक्स है, ये सब जेई एडवांस ओके एंड जेई मेंस के ट्रिक्स है. आप लोगों को इतना बहुत ज्यादा सवाल इसमें नहीं आता है, बट सिंस आई एम पिकिंग अप आई एम डूइंग इट. ये क्या बोलना चाह रहा है कि I'll convert this into a reference circle method. ध्यान देना सब लोग. अभी इधर आपको पता लग गया कितना डिग्री कवर करना है क्वेश्चन में, कितना डिग्री उसको कवर करना है. कौन हेल्प मी आउट. 120 डिग्री उसको कवर करना है. ठीक है, उसको 120 डिग्री कवर करना है, इतना तो पता लग गया है. और किसके नजदीक रहना है, किसके नजदीक रहना है? मीन पोजीशन. तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो इधर था मीन पोजीशन. इसका परछाई अगर मैं बनाऊं तो इधर था, इधर उसने 60 डिग्री मारा, इधर से इट केम योर. यस और नो, यस और नो, यस और नो, एंड केम हाउ मेनी डिग्री अगेन 60. तो टोटल हाउ मेनी डिग्री ही इज कवरिंग इन सर्कल 120 डिग्री. और इसका परछाई अगर मैं बनाऊं इधर से इधर, तो कैन आई से वो इधर था. हेलो, और वो इधर आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes. Yes, sir. And it has to be near to mean position because they are telling you it has to have maximum value. Hello, hello, hello. Yes or no? Yes. अच्छा, कोई बता सकता है ये कितना डिग्री है? अच्छा, हमको मालूम है कि ये एम्पलीट्यूड होता है ना. रेफरेंस सर्कल मेथड में ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ये कितना डिग्री है? 30. तो कोई बता सकता है ये कितना रहेगा? हेलो, कैन आई से इट विल बी √3/2a? अरे मेरा भैया, दिस इज a cos 30 ना, a cos 30 ना. हाँ, डाउनवर्ड. कम ऑन मैन, कम ऑन, प्लीज टेल मी. एंड कैन आई से दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? Yes. So can you tell me how much distance he is covering from initial to final position? Did you understand? Did you understand? Yes. Now we need average speed. Huh? What is the formula for average speed? By average speed. Total
distance upon total time. How much distance he is covering and how much time he is taking? 3 root 3 a by t. बोलो. हेलो. Yes, sir. आप लोग को समझा? फिर से एक बार सिखाता हूँ. देखो इधर रेफरेंस सर्कल बनाने का. सर्कल पे कितना डिग्री कवर करना है? 120. 120 and 120 near the mean position. So this will be 60 either and 60 either. So can I say this will be 30 now? And this we know it is A. So this will be root 3 by 2A. Cos 30. This will also be root 3 by 2A. Yes or no? So this will be root 3A. Bolo bhai. And then you apply this formula and get the answer. Bolo. Yes, sir. Okay. Fine. Question. Are you all understanding? Question number 88 is gravitation का सम इधर भूल से आ चुका है. Question number 88 is gravitation question. This is gravitation question. You can practice it. It's a nice question only, but it has come over here by mistake. Hello. Are you getting it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Question number 89, 90, 91. 89, 90, 91. I am doing the 3 questions. बहुत अच्छा question है, सब लोग इधर ध्यान देना. Pay attention. A system shown in the figure is in equilibrium. The mass of the container is m, बड़ो m. The mass of the container is बड़ो m. Density of the liquid is rho. Volume is v. If the container is displaced, beta, who is displaced? Who is displaced? Container. Is displaced downward through x naught. मतलब ये कंटेनर को मैंने नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया. ये कंटेनर को मैंने नीचे कर दिया. चलेगा क्या? हेलो. Are you getting it? मैं कंटेनर को नीचे धकेला और छोड़ दिया. क्या ये वाले स्प्रिंग कांस्टेंट को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई. ये तो हवा में है ही ना अपने आप. उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. किसके ऊपर? हेलो. Can I say, listen to me, I'll tell you. See, this is the spring. This is the mass. Okay, this is A. ये ऐसे था. They both were resting. बोलो. Now what do I do? ये तो सेम का सेम ही है. इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये तो वैसे का वैसे ही है. इसको हमने नीचे धकेल दिया थोड़ा. Are you getting it? Yes. हेलो. पानी अच्छा खासा भरा हुआ है. Don't worry about the water. Can I say ये स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगा ना x नॉट से. So can you tell me which spring is exerting a force, upper spring or lower spring? हेलो भाई बोलो. लोअर स्प्रिंग. लोअर स्प्रिंग का इधर एक स्प्रिंग फोर्स आएगा. कितना आएगा? kx नॉट. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. And because of this lower spring, can I say when I leave this container, the container will go khadak khadak up and down, up and down, up and down. Yes or no? It will perform simple harmonic motion. The container. बोलो भाई. Yes, sir. Yes. Are you getting the feeling? Are you getting the feeling? Yes or no? Last 2 question है भाई. हाँ ना बोलो. Yes. Clear है? Please. Okay. What will be the formula? Time period क्या होता है spring pendulum का? 2 pi root of m by K. k. 2 pi root of, because एक ही k है ना. दो k तो है नहीं. ऊपर वाला तो k कुछ नहीं कर रहा. There is no force coming from here. There is no extra force coming from here. Yes or no? Because ये जो position है वही position है ना. Yes or no? हेलो. हेलो. Yes, sir. तो एक ही तो k है और एक ही अगर k होता है तो t is 2 pi root of m by k. बट m में कौन कौन है बेटा? Who is there in m? Which m will I take? Which m will I take? Mass of Can the I say दोनों? Because container, I'll take the mass of the system. Hello. Yes or no? Yes, sir. I'll take the mass of the system. This is m is not mass of the container. It is mass of the whom? Mass of the
system, it will be mass of the container plus mass of A. बोलो. Hello. Hello, are you there? Yes, sir. तो आंसर क्या बचा? ABCD. आपको पता ही लग गया आंसर क्या है. हेलो. Yes or no? Please tell me. B आंसर होगा. B आंसर होगा. See how? Mass of the container is बड़ो M and mass of A. अभी A तो हमको मालूम नहीं है, but A can I say it is पूरा डूबा हुआ, full inside, and whenever it is fully immersed, can I say weight will become equal to upthrust. ये सब fluids के concepts हैं. Weight कितना है mg, mass of A into g, and upthrust is V immersed, but V immersed is पूरा V, rho liquid into g. But can I say G and G will cancel? So mass of A कितना रहेगा? V into rho liquid. अरे mass will be density into volume ना, but density of the solid and density of the liquid, because both are floating each other. तो ये हो जाएगा V into rho liquid. ये हो जाएगा mass of the system. And can I say M की जगह I'll substitute this and you will get this answer. Hello, are you getting it? Yes, sir. It will be M plus something ना. देखो actually थोड़ा सी होशियारी लगाएंगे तो you will not be able. This cannot be the answer. So obviously answer can be this only ना. Because mass will be mass of the container plus mass of something ना. Hello, hello, hello. Yes. Mass of the container plus mass of A ना, तो वही आंसर दिखाई देगा. Amplitude of SHM is x naught is not true. Amplitude of SHM is x naught. Amplitude of SHM is container. Amplitude of SHM of the container is x naught. करेक्ट है, ये भी सही है. कि एक मिनट. एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, ये भी सही है. तो आंसर बी और सी है. यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में आ गया है, बट जनरली अगर एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एक्स नॉट नहीं होता तो आंसर यही होता था. ये भी आंसर सही है. एम्पलीट्यूड एक्स नॉट नहीं है, बिकॉज जितना प्रेस किया उतना ही तो ऊपर जाएगा. हेलो, हेलो, जितना प्रेस किया है उतना ही तो ऊपर जाएगा. सो प्रेस कितना किया आपने, एक्स नॉट प्रेस किया, तो उतना ऊपर जाएगा ना एक्स नॉट. दैट विल बी द होल केस. So actually this is multiple choice correct answers, but you can have the answer as B also. Last two questions, 90 and 91. A block of mass 100 gram is attached to a spring constant 100, trying to be frictionless floor. The block is moved and compressed by 10 and then released. Okay, in front of the elastic wall. अच्छा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कुछ डायग्राम में, कुछ और दिया है क्या? हेलो, आई डोंट थिंक सो. डायग्राम में कुछ और दिया है. 5 cm. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, मिल गया. अच्छा, कितना प्रेस किया मैंने उसको? रीड द क्वेश्चन. कितना कंप्रेस किया मैंने? 10 cm. मतलब यहाँ पर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया है ना, 10. आर यू गेटिंग इट? ये मीन है ना. हेलो, कैन यू टेल मी अगर दीवार नहीं होता, लिसन टू मी केयरफुली, अगर दीवार नहीं होता तो वो उस तरफ भी कितना उछलता? 10 cm. 10 होता ना. हेलो, 10 दबाया ना मैंने. हेलो, अरे भाई, टेल मी यस और नो. Yes, sir. दिस इज ए ना बाबा. व्हेन यू आर compressing it here and leaving from here, तो
तो वो 10 इधर जाएगा और दीवार नहीं होगा तो 10 उधर भी उछलेगा. कैन आई से दिस इज योर ए एंड दिस इज व्हाट? A by 2. a/2. यहाँ पर दीवार ने उसको रोक लिया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा. यस और नो, यस और नो, यस और नो, Yes. यस और नो. अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब एक यहाँ से जिधर से शुरू किया उधर जाना और वापस आना. यस और नो? अरे भाई टेल मी यस और नो. Yes. कैन आई से यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो, पहले कितना टाइम लगेगा? T by t/4, t/4. यस और नो? हेलो? Yes. देन यहाँ से यहाँ तक गया, कितना टाइम लगा? 0 से लेके a/2 t/12. T by 12. देन इट विल टर्न बैक. कितना टाइम लगा फिर से? T by 2. देन इट कम्स हियर अगेन. कितना टाइम लगा T इधर? by 4. डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? हेलो? Yes. Sir. So t/4 plus t/12 and 2 times ना. yes or no? Hello? Yes. Sir. You're not understanding only, man. This answer will come 2t/3. Done. So 2/3 of t. T is 2 pi root of m by k. Hello? बोलो. Yes. Sir. आंसर आपको मिल जाएगा 0.132 seconds. Are you there with me? Are you Yes. there? Yes, sir. ओके तो इसलिए मैं कह रहा था वो रट्टा मार लो. क्या? t/12 t/6 वाला याद आ रहा है? अभी अभी कैसे यूज हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो? Yes. Sir. Yes sir, yes sir, yes sir, come on. Fine. Question number 91. Last question. One end of the long metallic wire of length L is tied to a ceiling. So there is a wire which is tied to a spring. Metallic wire. There is a wire. Okay. The other end of the wire is connected to a spring constant K, and hangs freely and attached to a mass. Can I say इसका जो Young's modulus है वो y है, area of cross section A है, and length L है. Okay, fine. If the mass is displaced down, can I say time period क्या रहेगा इसका? Time period का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi root of spring pendulum का क्या होता है? m by k equivalent. बराबर है? हेलो, are you there? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसको अगर मैं एक स्प्रिंग में बदल दूं, इस चीज को अगर मैं एक स्प्रिंग में बदल दूं, कैन आई से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये मास है. बराबर है क्या? अच्छा, ये दोनों स्प्रिंग्स किस में रह गए? सीरीज में रह गए, पैरेलल में हो गए? कम ऑन मैन. Series. Series. सीरीज. बट ये K क्या रहेगा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था K फॉर अ वायर. व्हाट इज K एक्चुअली? व्हाट इज K कॉल्ड एज? स्प्रिंग कांस्टेंट. K को एक्चुअली लिख सकते हैं F/X. हेलो हेलो हेलो, यस Yes. और नो? दैट इज F by छोटो L. इलास्टिसिटी याद है किसको? छोटो L चेंज इन लेंथ. यस और नो? यस और नो? यस और नो? हेलो? Yes. कैन आई राइट दिस एज? ये फॉर्मूला मालूम है ना? यंग्स मॉडुलस इज F बड़ो L अपॉन A छोटो L. तो F by छोटो L from here will become YA by बड़ो L, which is nothing but K. हेलो बोलो. Yes. ये K, ये किसका K बन गया? ये इसका K बन गया. कितना बना? YA by बड़ो L. याद रख लेना वायर का K कितना होता है? YA by बड़ो L. Are you there with me? Are you there with me? Yes. Sir. सीधा ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा रट्टा मारो. ओके आप लोग को क्या है बेटा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि याद करने के लिए, बिकॉज आप लोगों को बायो के याद करने का आदत है. ओके, इफ इट वुड बी अ जेई एडवांस केस और जेई उसमें याद नहीं रख सकते, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर. बट आप लोग को प्रैक्टिस है याद करने का. ओके, यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट विच इज मेमोरी बेस्ड. तो आप लोगों को याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. एक दो बार लिखो, एक दो बार फॉर्मूला शीट बनाओ, याद हो जाएगा. यस और नो? अच्छा, ये दोनों किसमें आगे के? ये दोनों किसमें है आगे के? ये दिस के एंड दिस के आर इन Series. सीरीज. व्हाट इज के सीरीज का फॉर्मूला? K1 K2 upon K1 plus. K1 की जगह लिख सकते हैं YA by बड़ो L into K, नीचे वाला K, and this will be YA by बड़ो L
प्लस के. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग इट? Yes. तो इसको लिख सकते हैं वाई ए के बाई एल, एंड इसको लिखूंगा वाई ए प्लस के एल बाई एल. तो एल एल उड़ गया, तो ये बना वाई ए के बाई वाई ए प्लस के एल. बोलो 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 बोलो. Yes. और इसकी जगह के इक्विवेलेंट में पुट कर देना है. तो आंसर क्या हो जाएगा? टी विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के इक्विवेलेंट. के इक्विवेलेंट इज दिस ओनली. तो ये कितना हो जाएगा? वाई ए के, ये ऊपर चला गया ना, वाई ए प्लस के एल. दिस विल बी द आंसर. यस और नो? हेलो. Yes, sir. अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल में होते तो क्या करता? K1 plus. K1 plus K2. You know it ना now? Hello, please tell me. Yes. So it is simple question only. 92 and 93 are JEE advanced level questions. You need to cancel it out. Okay. कभी जिंदगी में पूछेगा नहीं वो. 92 and 93 and 94, 93, 94 and 95 you all can do it. It's theoretical based only. ठीक है. Hello. Yes. So I have done from 70 to 90 some important question, maybe 10 12 important questions are there. आप देखो चैप्टर टफ नहीं है. चैप्टर का कुछ पार्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई 70 to 90 टफ होगा. पहले 70 तक पक्का करो. हेलो. सम स्टूडेंट्स यू नो आई नो एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू डू हार्ड सम्स. नो, ऐसा नहीं होता है बेटा. यू हैव टू लुक एट द पेपर एंड डू द थिंग. पेपर आपका 40 क्वेश्चंस विच आर देयर, दे आर इजी लेवल क्वेश्चंस. तो 40 मतलब 40 into 4 160 आपका पक्का हो जाता है. यस और नो? तो आपको पहले वो 160 को पक्का कर रहा है. देन इफ यू फील दैट आई हैव टाइम एंड आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दीज सम्स, देन यू कैन डू ऑल दीज सम्स. ओके, डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड एवरीथिंग. पहले उसको पक्का करो. हेलो. आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट डू दिस. हाँ प्लीज, आई वांट फुल मार्क्स, बट पहले उसको करो. हेलो. ये स्ट्रैटेजी समझ में आया आपको? बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, फिर उनके मार्क्स नहीं आते हैं. सर आई वाज डूइंग ओनली हार्ड सम्स एंड नो हार्ड सम्स केम इन द एग्जाम. तो ऐसे बहुत टाइम होता है. ठीक है. हेलो. Yes. ठीक है, चलो. Yes. सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय. अच्छा, मंडे से वील बी स्टार्टिंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई विल बी डूइंग, एक मिनट, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे विल बी डूइंग. क्या करना है हमको? Correct. इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट क्या करेंगे? तो आई विल बी सेंडिंग यू वीडियो रिकॉर्डिंग्स. याद है ना हम लोग करते थे एचएससी के लेक्चर्स बाबा? हेलो. Yes. Okay, because I cannot teach you on tablet current यार. It's an abstract thing. तो आपको सामने एक्शन करते हुए I will be seen over there in the video recording. You can see that videos and you can just note it down. And Monday, Wednesday, Friday I will be sending two lectures. Monday 2 lectures, Wednesday and 2 lectures, Friday 6 lectures में numericals के साथ में खत्म हो जाएगा. फिर उसके next Monday we'll start with what? Current electricity of what, sir? NEET. Yes or no? जिसमें I'll be doing 11th standard का NEET also and 12th का current. याद है ना 11 में भी चैप्टर था. हेलो. Yes. हेलो. Yes. So full basic revision of 11th and 12th from NCERT point of view. Okay, and we'll be going with the solving also. Getting enough? तो ये चीज वो नेक्स्ट मंडे से होगी. पहले आपको ये चीज को देख लेना है. इस वीडियो रिकॉर्डिंग यू नीड टू सी एंड कंप्लीट द एचएससी फॉर्मेट प्रॉपर्ली. ठीक है, चलो. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू.